Hello students, welcome back. In the previous class, we were studying about the neural or the nervous tissue. Basically, when we talk about the neural or the nervous tissue, it is nothing but made up of neurons or the nerve cells. Even along with the neurons, there are other cells which make up the nervous tissue, that is the glial cells, the cells which keeps the neurons together, attaches them together. Fine, we did study about the structure of the neuron or the nerve cell. Fine, we also did study about the types of the neurons. Then we studied about the axon, that is the axon could be either of two types, that is myelinated, non-myelinated. We did even studied about the glial cells, that is the cells which attaches the different neurons together. Fine, something like this. So there are very different kind of glial cells, wherein I gave an example of the microglial cells, even the oligodendrocytes which are attached to the Schwann cells, all of them are example of the glial cells. Now today we shall be studying about, yes, the very first thing is the working of the nerve cell. So basically जो working की जब हम बात करते हैं तो what happens in the working. So basically if I just tell you with the help of a diagram, so we can see that this is nothing but a neuron. Fine. Now when we talk about its working, so fine, you know that these are nothing but the small branches are termed to be as the dendrites. Fine, this is the cell body, this is the axon which is being covered by, say, the myelinated sheath. Fine, and here we have the nerve endings, and at the nerve endings we have what? We have the synaptic knobs. Fine. Now basically when there is a stimulation, for example, if there is something hot which is being touched by my hands, now my skin is a sense organ. Fine, so basically the sense organ, when we talk about the sense organs has specialized receptors. उनके पास क्या होता है? receptors होता है. जैसे कि मेरे हाथ में ऐसे receptors होते हैं जो touch को समझ सकते हैं. तो is it hot, is it cold, तो everything is being understood by the receptors which are present in my skin. Now this receptors pass on the stimulation. तो stimulation इधर कौन सा है? जैसे कि समझ लो it is a hot vessel. Fine, so that is the stimulation which is being received by the receptors which are suppose say present in my fingers. Fine, on my skin say. Now this receptors receives the stimulation and passes it to the nearby nerve cell. जैसे कि मैंने इस फिंगर से, इस हाथ से इसको टच किया है किसी हॉट वेसल को, और वो हॉट वेसल जो रिसेप्टर्स हैं वो इधर जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं, फाइन, उनको क्या करेगा? तो उनके डेंड्राइट्स में वो मैसेज ले जाएगा. फ्रॉम द डेंड्राइट्स द मैसेज विल पास ऑन टू द सेल बॉडी. फ्रॉम द सेल बॉडी इट विल पास ऑन टू द एक्सॉन. From the axon it will reach to the nerve endings, और nerve endings में जाने पे it will reach to the synaptic knob. अब हमने आगे बात की थी कि synaptic knob के अंदर specialized क्या होता है? तो chemicals होते हैं जिनको हम बोलते हैं neurotransmitters. जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एसिटाइल कोलाइन का. yes, हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? एसिटाइल कोलाइन का. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एसिटाइल कोलाइन, once on receiving the impulse, once on receiving the message from the axon, what happens here? The acetyl choline will be released. The acetyl choline, yes, will be released, and this acetyl, जैसे कि ये सेकेंड जो न्यूरॉन हैं उनके फाइबर्स हैं, समझ लो. फाइन, चलो, तो दिस एसिटाइल कोलाइन इज बीन रिलीज्ड इन दिस गैप, और ये गैप क्या होती है? तो उनको बोलेंगे सिनेप्स. क्या बोलेंगे? सिनेप्स. तो ये एसिटाइल कोलाइन है, वही इसी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाएगी. तो दिस एसिटाइल कोलाइन विल बी रिलीज्ड एंड इट विल टेल द एडजेसेंट न्यूरॉन, जो बाजू वाला न्यूरॉन है, साइड वाला, उनके पीछे वाला जो न्यूरॉन है, उनको बताएंगे सेम मैसेज जो पास होके आया था. तो वही एसिटाइल कोलाइन इन डेंड्राइट्स को बताएंगे कि भाई दिस इज द मैसेज. द डेंड्राइट्स विल pass on to the cell body, to the axon and so on. This acetylcholine will again move back to the synaptic knobs. वे वापस उनकी जगह पे चले जाएंगे. अब ये जैसे कि एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया. Likewise it goes to the spinal cord,
यस एंड इवन टू द ब्रेन, बराबर है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करेंगे, वही मेथड से न्यूरॉन्स की ही मदद से वापस क्या करेंगे, दे विल रिप्लाई बैक, वो क्या करेंगे, रिप्लाई बैक। तो जैसे कि मेरे हाथ के जो मसल्स हैं उनको वो रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने पर क्या होगा, आई विल इमीडिएटली विड्रॉ माई हैंड। सो दैट इज द वर्किंग, द फंक्शन हियर वी कैन चॉक आउट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। अब वो मैसेज कैसे पास होता है, तो भाई लेटर के फॉर्म में तो पास नहीं हो रहा, इट इज पासिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, जो मैंने मैसेज की बात की उसका टेक्निकल वर्ड है, तो इट पासेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फाइन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वी कैन इवन से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। फाइन, सो दैट डिस्टर्बेंस पासेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। वैसे ही हम इधर बात करें तो देयर आर वेरियस जैसे कि एलिमेंट्स हैं, दैट इज सोडियम है, पोटेशियम है, उनके इन एंड आउट मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन वैसे करके पास करता है। तो बेसिकली उसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होता है, वो स्टिमुलस को पहचानता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट करता है, तो फ्रॉम द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से लेके नर्व एंडिंग्स, तो नर्व एंडिंग्स को हम दूसरा क्या बोलेंगे, आउटपुट जोन। आउटपुट जोन मतलब है ऐसा जोन जहाँ से वो इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुँच रही है। फाइन, देन द मैसेज देन ऑन फ्रॉम वेरियस न्यूरॉन्स इट पासेस टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच इज टर्म टू बी एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फाइन, उनको क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, एंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड रिवर्ट्स बैक in the same phenomenon. Fine, if I just show you this by an animation. So if you can just see the diagram over here, what is it conveying, that whensoever this girl is touching something hot, so that is the stimulus which is being sensed by the receptors which is present in her skin, and that is giving the message to the spinal cord and the brain. The spinal cord is responding back to the muscles, so muscles contract और अपना हाथ भी मूव हो जाता है। फाइन, अपना हाथ भी क्या हो जाता है, इमीडिएटली उधर से मूव हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन, दिस प्रोसेस बेसिकली हैपन्स बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स। वो किन की वजह से होता है, न्यूरॉन्स। जैसे कि इससे समझ लो ये जो है वो पर्टिकुलर स्किन है, तो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने मैसेज पास किया, फिर वो मैसेज इंटर न्यूरॉन मतलब में जो छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। फाइन, तो एक न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन जैसे कर करके फिर उधर ये मसल्स तक आता है। फाइन, ब्रेन किसको बोलेगी, मसल्स को बोलेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से हाथ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। सो ऑल दिस फिनोमिनन दैट हैपेंस इज अ मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फाइन, wherein we withdraw our hand, which is because of the message that is being given by the spinal cord to the muscles. Fine, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, जो इमीडिएट एक्शंस होती है, जो हम थिंक किए बिना करते हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि हम इसका देखते हैं, सो बेसिकली ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये जो हमने ये जो एक्सॉन की लेयर बताई या सेल बॉडी की लेयर बताई है, तो उधर क्या होता है, देयर इज कंटिन्यूड इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ वेरियस materials such as say sodium, potassium, fine, and with the help of ATP, and this phenomenon takes place. Fine, we shall understand this in the coming year. So hopefully you have understood about the basic working of the nervous tissue. Fine, now moving ahead with the next one, that is studied about 4 different kind of tissues in our body. Barabar, epithelial tissue, then we talked about the connective tissue, we did even talk about the muscular tissue, and we did talked about the last one, that is the nervous tissue. अब ये जो सारे टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यू जैसे कि हमने बात की थी डिफरेंट, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो उन्हें हम टिश्यू
टिश्यू बोलेंगे। तो हमने ऑलरेडी टिश्यूज़ पढ़ लिए, 4 तरह के टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमने पढ़ लिए। नाउ ये जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, ग्रुप होते हैं, अलग अलग टिश्यू ग्रुप होते हैं और फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। फिर सारे जो ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी के, जैसे समझ लो लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, फिर ईसोफेगस है, समझ लो, तो ये सारे जितने, किडनी है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम, ऑल द ऑर्गन्स, दे एसोसिएट विथ वन अनदर, दे कम्युनिकेट विथ वन अनदर, फाइन, ऑल द ऑर्गन दे एसोसिएट विथ ईच अदर एंड they form the organ system. So basically now we are going to study about the various organs and how does the organ system form in various organisms such as the yes, earthworm, frog, cockroach and so on. So basically tissues are grouped into organs. For example, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हम जब हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में ना ही सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है और ना ही सिर्फ मस्कुलर टिश्यू है, हार्ट में सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है और नर्वस टिश्यू भी होता है। फाइन, एपिथेलियल टिश्यू मतलब में जो उसको कवर कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब में हम ब्लड की बात करें तो ब्लड तो हार्ट से ही सर्कुलेट होता है, तो उसमें ब्लड भी होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी है। मस्कुलर टिश्यू की हम जब बात करें तो दैट इज द कार्डियक टिश्यू विच इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ हार्ट टिश्यू इटसेल्फ, सो उसमें मसल टिश्यू भी होता है। और जब हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो येस, वेरियस न्यूरॉन्स गोज एंड अटैचेस टू द हार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, in order to do the continuous beating of the heart. Fine, so that is how various tissues are grouped together to form a given organ. बहुत सारे टिश्यू, जैसे कि ये चारों के चारों टिश्यू हैं, वो मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं। फाइन, now moving ahead with the various terms associated with the body of an organism, that is studying of that is morphology. मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम सारे ऑर्गेनिजम्स की, साथ ही साथ उनकी एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। तो हम जैसे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनमें ये सारे टिश्यू होते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली इंटरनली अलग होता है। तो दैट इज वाई हियर आर कोटेड टू वर्ड्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. When we talk about morphology, morpho means exterior and logy, that is study. Fine, ana means interior. Fine. सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी, जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो दैट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स, जो बाहर के विजिबल फीचर्स होते हैं, जो दिख रहे होते हैं, वैसे जो फीचर्स की हम स्टडी करें तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी. एंड दिस इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन फॉर मॉर्फोलॉजी व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. फाइन, दैट इज व्हाट इज बीन सीन, वी आर राइटिंग इट ऑफ, वी आर स्टडिंग इट ऑफ. इन एनिमल्स दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल. फाइन, जैसे कि हम बात करें तो एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी मतलब में हम बाहर से कैसे दिखते हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा. इवन हमारे ऑर्गन्स भी कैसे बाहर से दिखते हैं तो उसको भी हम मॉर्फोलॉजी ही बोलेंगे. फाइन, ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं तो उनके ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं बाहर से, तो दैट इज द स्टडी ऑफ, दैट इज द मॉर्फोलॉजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड नॉट एनाटॉमी. फाइन, सो बेसिकली जब प्लांट और माइक्रोब्स की बात करें तो वो प्लांट बाहर से कैसा दिख रहा है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, क्या है, बराबर, उसके रूट कैसे दिख रहे हैं, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, उनके लीव्स कैसे हैं, तो बाहर से वो जो दिखते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो दैट इज मॉर्फोलॉजी. जब हम एनिमल्स की बात करें तो ऑब्वियसली एनिमल्स भी वो बाहर से कैसा है, फाइन, एवरीथिंग अकाउंट्स टू बी इन मॉर्फोलॉजी. बट जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर के ऑर्गन्स भी जो हम बाहर से पढ़ते हैं, जैसे कि भाई किडनी है तो किडनी कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, तो दिस इज नॉट एनाटॉमी, भले ही अंदर का ऑर्गन है बट हम उसको बाहर से देख रहे हैं, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजी. फाइन, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एनाटॉमी, सो एनाटॉमी इज नथिंग बट इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. मतलब में जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं अंदर से तो उनको हम बोलेंगे एनाटॉमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड टू बी एज एनाटॉमी. सो दिस आर द टू बेसिक वर्ड्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. नाउ in the coming class we shall be talking about earthworm, its external features, and then on we shall be moving on to studying of various systems which the earthworm possesses. Thank you.